Hello. So now I'm back with mathematics for class 10 ICSE. I hope you all remember I am Dr. Shreya and I have done sulfuric acid before for all of you. And today we will be discussing about exercise 24A of Selena for class 10. Okay. And I'm going to teach you how to find mean. Okay. For ungrouped data. Ungrouped data matlab these are singular datas. And for those who are having any queries about what is a mean, it is a measure of a central tendency, just like median, quartiles and mode. All these will be covered in the later videos that will be coming soon. Okay, so first I am going to start with mean. So the question number I have shared here for all of you, and the question. Again, question number 14, I am showing you another method to find mean, that's called shortcut method. This is a direct method. And question number 13 of Selena 24A exercise, the method that we are using is step deviation method. So now we will be discussing what is a direct method. So direct method क्या होता है? Direct method, first of all, what is mean? Mean क्या होता है? When we add all the observations that are given to us, that is, we do sum of all the observations upon the number of observations, that is called mean. Okay. So here in the direct method, when we have कि 12 years के दो लोग हैं, 12 years के दो लोग हैं, 13 years में 4 है, तो this becomes our x, this becomes our x. So we should know ना कि 12 years वाले दो लोग हैं, तो total age मतलब f of x, this is called कि 12 years वाले हमारे पास दो बच्चे हैं, तो मतलब कितना एजेस है हमारे पास टोटल अभी 24 years. कितना है 24. अब 13 वाले 4, तो 13 into 4 is 52, 14 into 6 is 84, 15 into 9 is 135, correct? 16 into 8 is 128, 17 into 7 is 119, and 18 into 4 is 72. तो यहाँ पर we have found out what is f of x, what is f of fx, not f of x, what is fx? Fx मतलब f multiply by x, where f is the frequency and x is the ages in years. So now if we add all of them, we say this is called summation of fx, summation of fx. Summation of fx कितना है? 4 plus 2 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 8 23, 23 plus 9 32, 32 plus 2 34. So now carry over 3, 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, plus 8 18, 19 20 21, 22 23 24, and 7 again 31. Carry over 3, 3 plus 1 4, 5 and 6, correct? So the total is 614. And now here also we have to find out total number of observations, total number of, because it is what? Mean is what? Sum of all the observations upon total number. कितने लोग हैं हमारे पास, टोटल कितने लोग हैं? तो ये है 12, 21, 29, 36 and 4 40. ओके, तो अभी मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ f of x अपॉन समेशन ऑफ f. सो दैट इज 614 divided by 40, divided by 40. So what we will get now बच्चे लोग in this? 4 tens और what we can say, आपको डायरेक्ट 40 से कर देगी तो ज्यादा बेटर होगा.
41 जा 40, 21 बचेगा 214, तो 45 जा 200, करेक्ट. अभी 14 बचा. सी आई कैन शो यू ओवर हियर हाउ इट इज. 4614, तो 41 जा 40, करेक्ट. 45 जा 200 एंड आपने एक जीरो डाला तो आप डेसिमल डालोगे. 43 जा 120, करेक्ट. and 45 are 200. So the mean is 15.35. So this is called a direct method. This is called direct method. I hope you are getting this. कि यहां पर हमने समेशन ऑफ पूरा fx का समेशन किया है, पूरा f का समेशन किया है एंड मीन के लिए समेशन ऑफ fx upon summation of f, that is sum of all the observations upon number of observation, which gives us 15.35. So this is shortcut method, direct method. ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जो भी दिया है उसको मल्टीप्लाई किया है, सारों को ऐड किया है एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ people or number of people who are having those ages. Okay, so this is direct method. Now when we come to shortcut method, एक चीज हमें assume करनी पड़ती है. हमें मीन ढूंढना है ना, तो ये मेथड में हम assume कर लेते हैं कि समझो अपना मीन है, इसी x में से कोई तो अपना मीन है. तो जनरली assume करने के लिए हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि जितने अभी कितने हैं आपके पास x, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 3 नीचे है 3 ऊपर. तो जनरली हम मीन को ना बीच वाला जो भी होता है वो अज्यूम करते हैं. अगर आप बोलोगे मैम हमारे पास 8 हो गए, तो क्या ले सकते हैं, 45 या 46? आप कुछ भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, 46 भी. ये इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है. हाँ, पर जनरली हो सके जितना आप मिडल वाला नंबर को अज्यूम करते हो तो कैलकुलेशन उतना इजी जाता है. तो यहां पर मैंने मेरे मीन को क्या किया है, अज्यूम मीन मेरा क्या है बच्चे लोग, 45. तो यहां पर एक चीज होती है जो हम बोलते हैं डी. क्या बोलते हैं, डी. तो हम लोगों को डी कैसे मिलता है, x माइनस ए करके, x माइनस ए. अब x ये है और मेरा a 45 है, तो अगर मुझे x में से 45 निकालना है, मतलब मुझे 40 में से 45 निकालना है, तो ये बनेगा -5. यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटीजर्स को हम भूले नहीं. +40 माइनस 45 -5, +41 माइनस 45 -4, +43 माइनस 45, तो ये -2. ये 45 माइनस 45 0. अब उल्टा 46 माइनस 45 1, 49 माइनस 45 4, 50 माइनस 45 5, करेक्ट. तो इस तरह से हमें अपना डी मिल जाता है. ओके, नाउ इन शॉर्टकट मेथड जैसे हमने डायरेक्ट में f और x को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था ना, अब हम लोग ने d फाइंड किया है. इसलिए फाइंड किया है क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशंस काफी डिफिकल्ट जाती और फिर एडिशन ये सब में वक्त जाता, कैलकुलेशन बड़ा होता, एक्यूरेसी नहीं मिलती. तो ऐसे टाइम पे हमें चाहिए कि हमारा जो नंबर है ना वो छोटा हो जाए. तो इसके लिए अब हम f को x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. x देखो कितने बड़े नंबर है, अब हम अपने f को d से मल्टीप्लाई करेंगे. आप देखो d कितने छोटे हो गए हैं. तो अगर अभी आप f d करोगे तो आपको मिलेगा 14 इंटू 5 माइनस 70, 28 इंटू 4, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, पर ये भी माइनस के साइन के साथ. 38 2 जा माइनस 76, 50 0 जा 0. See how easy it is. 41 जा 40, 24 जा 80, 10 5 जा 50. ठीक है, अब हमें यहां पर हमारे फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, समेशन ऑफ f. आप देख रहे हो 4 + 8 12, 12 + 8 20,
तो ये हो गया 0 और यहां पर हमने डाला 2, करेक्ट? आर यू ऑल गेटिंग दिस? नाउ 2 + 1 3, 5 8 13 17 18 19 एंड 20। तो हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गए हैं 40 और 200। टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गए हैं 200। और अभी हम समेशन ऑफ एफडी करेंगे। अब यहां पर देखो बच्चे लोग, जो पॉजिटिव नंबर है ना उनको एक साथ ऐड कर लो पहले, और जो नेगेटिव नंबर है उनको ऐड करके, नेगेटिव नेगेटिव होते ऐड है बट साइन रखनी पड़ती है माइनस की, करेक्ट? नेगेटिव नेगेटिव करना माइनस, माइनस करना प्लस है, पर साइन रखने की है माइनस की। तो आप एक साथ इनको जोड़ लो। जैसे देखो 70 112 एंड 76 को जोड़ दो, सो देन इट विल बी 14 15 258। बट ये 258 के साथ कौन सी साइन होगी बच्चे लोग? माइनस की। किसकी होगी? माइनस की। अब ये सबको जोड़ दिया 120 और ये 50 170, पर इसके साथ प्लस की साइन होगी, करेक्ट? अब माइनस प्लस हम क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस करेंगे, करेक्ट? सो नाउ 8 में से 0 गया 8, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 8, और ये हो गया हमारा 88। क्या आंसर आ गया? कंप्लीट 88। ओके। अब इधर हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, क्योंकि इधर हमने अज्यूम मीन को माइनस किया था ना, तो डायरेक्ट मेथड में जैसा हमारा मीन का फॉर्मूला है, यहां पर भी ये समेशन ऑफ एफ डी किया है हमने, है ना? तो अभी मीन की फॉर्मूला हो जाती है समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, जो भी मिलेगा, हमने जो अज्यूम मीन को माइनस किया था, इधर फाइनली हमें आकर ऐड करना पड़ता है, तो ही ये मैथमेटिक्स में सही माना जाता है। क्योंकि अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐड भी करना पड़ता है। ओके, सो नाउ हियर 88 अपॉन 200। अब 200 है ना, तो 2 into 100 भी लिख सकते हैं आप, और प्लस अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हमारा 45 था, हमारा 45 था, करेक्ट? कैन यू ऑल सी? सो ये 2 और 88 जाएंगे 44। अब 44 अपॉन 100 क्या हो जाएगा? 0.44 प्लस 45। तो ये हमारा आंसर बन गया है 45.44। So this is how we calculate mean by using shortcut method. This shortcut method में we have to assume our mean. Okay? फिर ये जो भी, मतलब ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली शॉर्टकट मेथड पे जाना ही क्यों है जब डायरेक्ट कर सकते हैं? तो डायरेक्ट में देखो, इधर मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी था डायरेक्ट मेथड में। इफ यू ऑल कैन सी, द डायरेक्ट मेथड मल्टीप्लीकेशन वाज वेरी इजी। 12 2 जा 13 4 जा 14 6 जा 15 9 जा 16 8 जा 17 7 जा 18 4 जा, ओरल कर सकते हैं। पर इधर आप देखो, ये सारे 41 into 28 ओरल कर सकते हो? नहीं। 43 into 38 ओरली हो सकता है? नहीं। इसके लिए हमको हमारे x को छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के तरीके के लिए हमने हमारे x को हमने एक सोचा हुआ नंबर में से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें से वो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो हमने हमारा अज्यूम मीन पकड़ा है, जो हम हमारे x से सब्ट्रैक्ट करके हम हमारे नए x को, या जिसे हम d बोलते हैं, उसे छोटा बना दिया है। अब f का इनके साथ मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो गया है ना? और फिर इनको ऐड करो, साइन माइनस की रखो, इनको ऐड करो, साइन प्लस की रखो, माइनस प्लस करेंगे माइनस, और यहां पर साइन होगी माइनस की। ओके, सो इधर हमारी एक मिस्टेक हो गई, इधर ये हो गया माइनस। अब ये माइनस होगा तो 45.44 नहीं होगा। अब हमें 45 में से 0.44 को माइनस करना है, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस एंड प्लस करने का होता है माइनस। तो यहां पर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा, कैन यू सी, 44.56। तो ये साइन अगर हम लोग चूक गए ना बच्चे लोग, ये माइनस की साइन, जैसे मैं चूक गई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने सिर्फ 88 डाली थी, तो इससे हमारी आंसर पूरी बदल सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग सम्स बेस्ड ऑन मीन।
ओके, ये 3 से 4 मार्क के बोर्ड्स में आते हैं. सो ये हमने जो अभी मैंने जो आपको बताया ये था शॉर्टकट मेथड जहां पे हम हमारे मीन को अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द लास्ट मेथड विच इज कॉल्ड स्टेप डिविएशन मेथड. अभी ये वाली मेथड में भी ये मेथड का ये वाली स्टेप तो हमें करनी ही है, क्योंकि अगर आप अभी भी देखो इनका मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी नहीं है. करेक्ट, तो डायरेक्ट मेथड तो छोड़ो, पर अगर हम इधर अज्यूम भी करते, अज्यूम कहां से करना है हमेशा याद रखना, अज्यूम कहां से करना है, एक्स में से, एफ में से कभी अज्यूम करते नहीं है. एफ इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो वी विल अज्यूम अभी कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखो 5 ऊपर 5 नीचे, अगर आपको चाहो 25 को ले सकते हो या 30, मैं एक राउंड नंबर को लेती हूँ 30, तो फिर कैलकुलेशन मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. तो अगर मैंने इधर अज्यूम मीन पकड़ लिया मेरा 30, तो मुझे पहले क्या फाइंड करना है, डी. अब डी फाइंड करने के बाद डी कैसे मिलेगा, एक्स में से इस अज्यूम मीन को माइनस करना. मेरा एक्स है अभी पहला वाला 5, 5 माइनस 30 इज माइनस 25, 10 माइनस 30 is minus 20, 15 minus 30 is minus 15, 20 minus 30 is minus 10, 25 minus 30 is minus 5. अब उल्टा 35 माइनस 30, क्योंकि x में से निकालना है ना, और x ये है और मीन ये है अज्यूम. सो 35 माइनस 30 5, करेक्ट. 40 माइनस 30, ओके 30 माइनस 30 तो 0, फिर 35 माइनस 30 5, 40 में से 35 जाएगा, 40 में से 30 जाएगा 10, 45 में से 30 जाएगा 15, 50 में से 30 जाएगा 20. सो दिस इज हाउ वी गेट डी. पर अभी भी अगर आप देखो बच्चे लोग, अभी भी हमारा कैलकुलेशन डबल डबल डिजिट में हो रहा है ना, अभी भी हमारा कैलकुलेशन इजी नहीं जाने वाला. ये नीचे के भले इजी जाए बट ऊपर के थोड़े डिफिकल्ट जाने वाले. तो इसके लिए हम और एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और हम निकालने वाले हैं टी. क्या निकालने वाले हैं, टी. और ये टी निकालने के लिए हमको जो डी मिला है उसे हमें डिवाइड बाय आई करना है. क्या करना है, आई. अभी आप बोलोगे मैम ये आई क्या होता है, ये आई क्या है. तो बच्चे लोग अगर अनग्रुप डेटा है तो आपको सिर्फ देखना है कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, हर एक के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है. तो इसी को हम बोलते हैं आई. आई इज नथिंग बट द क्लास की साइज, क्लास की साइज. तो वो क्लास साइज कैसे पता चलती है कि जो पहला है और दूसरा है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो हमारा हो जाता है आई. तो टी कैसे मिलेगा, जो भी डी है, तो इधर मेरा आई क्या हुआ बच्चे लोग, 5, करेक्ट. 10 माइनस 5, 15 माइनस 10, ये है आई. तो अभी मुझे टी नया मेरा टी ढूंढना है, तो टी कैसे मिलेगा, ये जो भी डी मिला है उसको डिवाइड बाय 5. तो माइनस 25 डिवाइड बाय 5 होगा, तो क्या मिलेगा, माइनस 5. माइनस 20 डिवाइड बाय 5 माइनस 4, करेक्ट. फिर ये माइनस 3, ये माइनस 2, ये माइनस 1, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 0, करेक्ट. आर यू गेटिंग, 0 डिवाइड बाय 5 इज 0, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, 10 डिवाइड बाय 5 इज 2, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 एंड 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4. ओके, तो अब हमको मिल गया टी. तो पर यहां पर हमारा अभी देखो, अब आप सोच सकते हो कि मैम 20 और 5 मल्टीप्लाई इजी, अभी ये सब सिंगल डिजिट हो गए ये सब. तो अब हम अपना एफ टी ढूंढ सकते हैं. क्या ढूंढ सकते हैं, एफ टी. तो एफ और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस 100. 43 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 172, माइनस 75 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 225. 67 एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 134. 72 और माइनस 1 को करोगे तो माइनस 72. ये 45 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0. 39 एंड 1 को
39 1 जा 39, 9 2 जा 18, 8 3 जा 24 एंड 6 4 जा 24, करेक्ट। तो ये होता है स्टेप डिविएशन मेथड। ये थोड़ा लंबा मेथड है, पर इस मेथड में हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़े इजी हो जाते हैं, पर स्टेप्स 2 ज्यादा करने पड़ते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमें अगेन समेशन ऑफ एफ तो हर मेथड में निकालना है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट यानी कि अज्यूम मीन मेथड हो, चाहे स्टेप डिविएशन मेथड हो। हमें समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ सभी में निकालना है। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हम समेशन ऑफ एफ एक्स करते हैं, पर वही शॉर्टकट मेथड में हम कर रहे हैं समेशन ऑफ एफ डी, ठीक है। और इधर हम अभी करने वाले समेशन ऑफ एफ टी, समेशन ऑफ एफ टी। तो आपको समेशन ऑफ एफ टी में आपको ये पहले मैंने आपको जैसे इधर सिखाया था कि माइनस माइनस को पहले जोड़ दो, तो ये हो जाएगा -272। अभी -272 के साथ आप क्या ले रहे हो, -225, तो ये भी ऐड होगा, बट साइन रहेगी माइनस की, करेक्ट। फिर उसमें -134 को जोड़ो, तो ये हो जाएगा -631, और इसमें 72 को जोड़ो, तो ये हो जाएगा 703। बट ये 703 क्या है बच्चे लोग, with a minus sign, with a minus sign. Hope you are getting this, -703 दिख रहा है। ये मैंने ये वाली टोटल की है इधर। Can you all see this total I have done here? ये टोटल करते वक्त मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक और थोड़ा भी हमारा मीन इधर उधर हो गया ना डेसिमल में भी, तो भी वो आंसर गलत माना जाता है। ओके, अब यहां पर हम लोग ये एडिशन वालों की करेंगे साइन, एडिशन। 9 + 8 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25, और ये 2 + 3 5 6 7 8 9 10, तो ये है पॉजिटिव 105। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा बच्चे लोग, माइनस प्लस करेंगे माइनस, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 598, 598। ओके, अब इसका एडिशन होना पड़ेगा, समेशन ऑफ f3 + 5 8, 8 + 7 15, 17 22 31 40 48 एंड 54। अभी कैरी ओवर 5 + 2 7, 7 + 4 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 6 24, 24 + 7 31, 31 + 4 35, 38। तो ये हो गया हमारा 384 इज समेशन ऑफ, ठीक है। अब यहां पर माइनस प्लस तो मैंने कर दिया, पर क्या मैंने माइनस की साइन लगाई, नहीं, तो यहां पर गलत हो जाते हैं हम, है ना। तो यहां पर -598। अब अगर हमें समेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, x बार जो होता है, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द बोर्ड, राइट। तो ये x बार हो जाएगा समेशन ऑफ एफ टी अपॉन समेशन ऑफ एफ, और उसमें हमने जो डिवाइड बाय आई किया था, हमें पहले उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर हमने इधर डिवाइड किया है तो सेम हमें मल्टीप्लाई करके उस चीज को नलीफाई करनी पड़ती है, और जो हमने इधर माइनस किया था उसे हम बाद में ऐड भी करेंगे, नहीं तो हमारा ये आंसर करेक्ट माना जाता नहीं है। आर यू गेटिंग? ओके, आई होप नाउ वी गेट दिस -598 अपॉन 384 multiply by 5, okay, and plus assume mean is, what is the assume mean, 30. So let's find out -598 upon 384। अभी आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि ऐसे टाइम पे जब चीजें ऐसी बनती है तो आप इन्हें और इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, इन्हें और इन्हें
मल्टीप्लाई कीजिए। अभी देखो मैं आपके सामने इधर मल्टीप्लीकेशन बता रही हूँ। 598 इंटू 5, 5 8 जा 40, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 5 5 जा 25 प्लस 4 29। तो कैन यू सी 2990 अपॉन 384 पहले करना है, और उसमें जो आंसर आएगा उसमें 30 ऐड करो, उसमें 30 ऐड करो। आर यू गेटिंग बच्चे लोग? ओके, आई होप। इधर मैं आपका कंटिन्यू करती हूँ। तो 2990 को हमें किससे डिवाइड करना है? 2990 को हमें 384 से। सो 384 को हम 2990, तो आप देखोगे 384 में अगर हम 10 जा करें तो 3840 होगा। तो ये लगभग 8 में, क्योंकि 8 3 जा क्या है 24 और इधर 29, तो शायद हो सकता है कि इधर हमारा ये 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 प्लस 3, 8 3 जा 24 and this is 30. This is going ahead, so we go one more step behind. ठीक है, 7, अब हम 7 से करेंगे। 7 4 जा 28, 8 7 जा 56 प्लस 2 58, 7 3 जा 21 प्लस 5 26। तो अगर हमने 2688 किया, 2688, और ये था हमारा 7 जा, क्या था 7 जा। तो नाउ दिस विल बी 8 10 0 और ये है 3। अगर आप इधर एक पॉइंट डालते हो तो आप इधर एक 384, अगर 8 जा देखे तो क्या मिला था, 8 4 जा 32, 67 एंड 30, ये भी थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर 7 ही आएगा, यहाँ पर 7। तो अगर अभी आप देखो ये और ये जा रहा है 7.7, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 37.7। आर यू गेटिंग दिस बच्चे लोग? होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। कुछ भी अगर आपके पास डाउट है या इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, लेट मी नो। Now again, what did I miss here? I missed here the minus sign. So if you put a minus sign, then 30 प्लस है और ये माइनस है, तो अभी 30 में से हमें 7.7 निकालना है, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 22.3, और उनको चाहिए कि हम आंसर करेक्ट नियरेस्ट होल नंबर में दे। तो ये 22.3 तो होल नंबर नहीं है, करेक्ट? सो 22.3 को मतलब अभी हमारे पास -7.7 प्लस 30 है, तो ये बन गया 22 पॉइंट यहाँ पर क्या दिख रहा है 3, तो ये हमें नियरेस्ट होल नंबर में आंसर मिल गया 22। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। मैंने ये तीनों, क्योंकि कई बार बच्चे मेरे को मेरे क्लास में भी बोलते मैम भूल गए, मैम ये एक बार फिर से बता दो ना, अज्यूम मीन क्या होता है, शॉर्टकट कब यूज करना है, स्टेप डिविएशन कब यूज करना है। तो अब आपको शायद थोड़ा आइडिया आ गया होगा बच्चे लोग कि डायरेक्ट मेथड में नंबर बड़े छोटे होते हैं, मल्टीप्लीकेशन इजी होती है, तब हम डायरेक्ट में जाते हैं। पर जब हम देखते हैं कि हमारा एक्स और हमारा एफ बड़े बड़े नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन हम ओरली क्या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एडिशन भी डिफिकल्ट हो जाता है और लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूम होता है। तो देन वी गो फॉर दिस शॉर्टकट मेथड वेयर वी अज्यूम द मीन। ओके, फिर कि अगर हमको शॉर्टकट हो ही रहा है तो फिर हम एक दूसरा मेथड क्यों ले रहे हैं? तो कभी कभी डेटा इतना यूज होता है कि ये शॉर्टकट लगाने पर भी आपने देखा इधर तक ये शॉर्टकट लगाया मैंने, ये सेम शॉर्टकट इधर लगाया, पर इसके बावजूद मेरे जो नंबर थे जो मुझे एफ से मल्टीप्लाई करने थे वो तब भी बड़े थे, तो मुझे इसको और छोटा बनाना था ताकि फिर मेरे लिए कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो हमने उसको क्लास साइज या क्लास हाइट से डिवाइड कर दिया। पर जो कुछ भी मैंने इधर किया, अगर मैंने इधर डिवाइड आई किया है तो फॉर्मूला में मैंने मल्टीप्लाई आई कर दिया, मैंने इधर -a किया था तो फॉर्मूला में मैंने +a किया। तो मतलब जो भी हमने किया हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हमने हमारा कन्वीनियंस के लिए ये चीजों को छोटा बनाया, बट एट द एंड हमने ये सारी चीजें जो डिवाइड की थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट किया था उसे ऐड भी तो कर दिया।
तो आई होप ये सम्स जो मैंने आपको ये सिखाया है ये सेलिना एक्सरसाइज 24A से है. आप लोगों को चाहिए तो ये क्वेश्चंस में इसके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और इसी एक्सरसाइज के और थोड़े सम्स जैसे F1 F2 कैसे फाइंड करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड और 2-3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. इसकी वीडियो 24A की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. आपको अगर ये वाला समझ में आया है और आपको चाहिए कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज काइंडली डू सब्सक्राइब and like and share. It will motivate me and let me know if I am helpful to you. Okay, so thank you so much बच्चे लोग. Have a very good evening. Bye.